تو آج کا پیغام ہے کرسمس کا پیغام، معافی کا پیغام ہے۔ یہ ٹاپک ہے کرسمس کا پیغام، معافی کا پیغام ہے۔ میں آج 3 آیات پڑھوں گی۔ جو پہلا میرا پوائنٹ ہے گناہوں سے معافی۔ تو اس کے لیے ہم پڑھیں گے مقدس متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ دوسرا پوائنٹ ہے صلح کا پیغام۔ کرسمس کا پیغام صلح کا پیغام، میل ملاپ کا پیغام ہے، اور فرشتوں نے خبر دی تھی۔ مقدس لوکا کی انجیل دوسرا باب، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ وہ زمین پر صلح کرانے کے لیے آئے تھے اور میل ملاپ کرانے کے لیے آئے تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ کرسمس کا پیغام ہم سب کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی معاف کریں، جیسے کہ افسیوں 4 باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ آمین، ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر آئے تھے تو وہ یہ ساری چیزوں کو لے کر آئے تھے، معاف کرنے کے لیے آئے تھے، گناہوں سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، اور صلح اور میل ملاپ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ہمیں وہ سکھا کر گئے ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں۔ کرسمس کا جب بھی آتا ہے یا کرسمس کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، خوشی کی باتیں، شادمانی کی باتیں، روشنیوں کی باتیں، تحفوں کی باتیں، اور بہت سارے پروگراموں کی باتیں۔ مگر بائبل ہمیں بتاتی ہے کرسمس ان سب باتوں سے بڑھ کر ہے، اور کہیں زیادہ گہرا اور بامعنی پیغام ہمیں دیتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ یسوع مسیح کی پیدائش صرف ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں ہے، بلکہ خدا کے دل کی آواز کی ترجمانی ہے۔ کرسمس صرف خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے بھی خوشی کا پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو زمین پر اس لیے آنا پڑا تاکہ ہمارے لیے معافی کا دروازہ کھل سکے۔ کرسمس کا اصل پیغام یہی ہے کہ خدا نے ہم سب کو معاف کیا، اور ہم سب کے لیے ہم معاف کرنے کے لیے خدا باپ نے پہلے قدم اٹھایا۔ خداوند کتنا پیارا ہے، کتنا رحیم ہے۔ خداوند نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ مجھ جیسا اور کوئی غنی نہیں ہے، تو یہ سچی بات ہے، کلام سچا ہے۔ خداوند یسوع جیسا، خداوند باپ جیسا کوئی اور نرم دل نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت عظیم ہستی ہے، ہم اس کی ہستی کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر بھی دنیا پر اس نے نظر کی، اس نے دنیا کو گناہ میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، اس نے لوگوں کے دکھوں کو دیکھا، اور خداوند نے پہلا قدم اٹھایا، اور اس نے معاف کرنے کا سوچا، معاف کرنے کا پلان کیا، اور خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک بدن تیار کیا گیا اور اس کو زمین پر بھیجا گیا۔ کرسمس کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح ساری دنیا کے لیے آئے تھے تاکہ جو کوئی اسے قبول کرے، اس پر ایمان رکھے، خداوند اسے معاف کرے، اور خداوند اسے آسمان پر میراث کے طور پر تحفہ دے، جیسا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میرے پاس وہاں تمہارے لیے جگہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو چرنی میں پڑا ہوا ایک بچے کی صورت میں تھا، وہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا تھا کہ وہ ہمیں سزا دینے نہیں
बल्कि मुआफ करने और मेल मिलाप करने के लिए आया था। फरिश्तों का भी यही पैगाम था और फरिश्ते भी यही गीत गा रहे थे, और गीत वो यही गा रहे थे, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सो खुदा उनसे राजी है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं। सो जो फरिश्तों का पैगाम था वही खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम यही था कि खुदा बाप और इंसान के दरमियान में जो फासले हैं वो ख़त्म हो जाएं, और यीशु मसीह इसलिए ही दुनिया में आए थे ताकि हमारा जो रिश्ता खुदा बाप से टूटा हुआ है वो बहाल हो जाए और हमारे दरमियान मेल मलाप कराने वाला जो ज़रिया है वो सिर्फ यीशु मसीह ही है। जब खुदा ने पहला कदम मेल मलाप का उठाया है तो हमें भी इस बात पर अमल करना चाहिए। चरनी से लेकर सलीब तक मसीह का पैगाम सिर्फ माफ़ी का पैगाम था। यीशु का नाम आसमान से आया था। फरिश्तों ने कहा था कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। वो हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, निजात देने के लिए और इस दुनिया में हमें आज़ाद करने के लिए आया था, और वो इसीलिए इस दुनिया में आया था ताकि हमें वो बचा सके। मसीह अपनी ज़िंदगी में हमेशा सलीब और दुखों का जिक्र भी किया करते थे, और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से मुआफ़ी के लिए अपनी जान कुर्बान की, उसका खून कतरा बकतरा हमारे लिए बहा, और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज हम जितने मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हम सब खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने के सबब से हम गुनाहों से आज़ाद हैं। खुदा ने हमें आज़ाद ज़िंदगी बख्श दी है। अब हम गुनाह के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम रास्तबाज हैं, और ये सब कुछ खुदा बाप का प्लान था। खुदा बाप ने पहला कदम उठाया ताकि वो हमें माफ़ करे। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है कि वो ये है कि सुलह का पैगाम। खुदावंद यीशु मसीह सुलह कराने के लिए आए थे ताकि जो रिश्ता अदन में टूट गया था वो दोबारा से बहाल हो सके। सो खुदावंद यीशु मसीह जो बदन लेकर आए थे, खुदावंद यीशु मसीह के सबब से खुदा बाप के साथ हमारा रिश्ता बहाल हुआ था। सो खुदावंद नहीं चाहते कि इस ज़मीन पर हमारे रिश्ते टूटे हुए हों या हमारे दिल आपस में दूर हों। जहाँ यीशु आता है, जैसे हमारे दिलों में यीशु है, तो यीशु चाहते हैं कि हमारे दिलों में भी नफरत की जगह मोहब्बत आ जाए। मसीह ने खुद सलीब पर अपने दुश्मनों को माफ़ किया था, और जब हम पैगाम सुनते हैं तो हमारे दिल में ईमान से ही हम कलाम को कबूल करते हैं। कलाम हमारी ज़िंदगी में असर करता है, और कलाम ये कहता है जब यीशु मसीह खुदा बाप की और इंसानों की सुलह कराने के लिए ज़मीन पर आ गया, तो अब हम जो ज़मीन पर हैं हम भी एक दूसरे को मुआफ़ करें, एक दूसरे के साथ रिश्ते को बहाल करें। और क्रिसमस का यही पैगाम है कि हम आपस में सुलह सलामती को रखें और खुदा के साथ भी हम हमेशा जुड़े रहें, और हम हमेशा दूसरों को माफ़ करें। माफ़ी जो है वो शिफा को लेकर आती है। माफ़ी रिश्तों को जोड़ती है। माफ़ जो करता है वो ईमान में मजबूत होता है। माफ़ जो करते हैं उनके दिल नरम हो जाते हैं, और कलाम कहता है खुदा हलीमों की तरबियत करता है। लेकिन जो एक दूसरे को माफ़ नहीं करते उनके दिल सख्त रहते हैं, और फिर वो ठीक से खुदा के साथ भी चल नहीं सकते। सो क्रिसमस का पैगाम माफ़ी का पैगाम है, इसलिए हमें ज़रूर एक दूसरे को मुआफ़ करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। सो क्रिसमस दिल की अंदरूनी शिफा और एक नई इब्तदा है। जब हमारी ज़िंदगी में काम करता है तो वो पुरानी चीज़ों को नया कर देता है। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं,
खुदावंद हमारी ज़िंदगी में जब आते हैं तो वो हमें हलीम और आजिज़ी सिखाते हैं और हमारे इस दिल की सख्ती को तोड़ देते हैं। सो खुदावंद चाहते हैं कि इस क्रिसमस पे जो क्रिसमस का पैगाम है कि खुदावंद ने पहला कदम उठाया कि वो हमें मुआफ़ करने के लिए ज़मीन पर खुद ही आ मौजूद हुआ। हमारे गुनाहों को माफ़ किया गया और कलाम भी बताता, ज़बूर 32 में लिखा है, ओ धन जिसदे बख्शे गए गुनाह, वो मुबारक लोग हैं जिनके गुनाह मुआफ़ हुए। सो हम मुबारक हैं क्योंकि हमारे गुनाह जो हैं वो मुआफ़ हो गए हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद ने हमारे लिए बहुत बड़ा इंतज़ाम किया और हमें मुआफ़ किया, गुनाहों से आज़ाद किया। खुदावंद यीशु मसीह के सबब से हमारी बाप के साथ जो है वो सुलह हुई, मेल मलाप हुआ। सो अब हमारे लिए जो पैगाम है, जो मैंने इफ्सियों की आयत पढ़ी थी, तो हम खुदा ने अपना काम कर दिया। खुदावंद ने आसमान पर हम पर नजर की, उसने हमारे लिए यीशु मसीह के बदन को तैयार किया, यीशु मसीह ने भी अपना काम कर दिया। अब हमारी बारी है और क्रिसमस जब हम मनाते हैं तो ये आयत हम सबको दिल में रखनी चाहिए और वो आयत ये है कि हम एक दूसरे पर मेहरबान हों, नरम दिल हों और जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे गुनाह मुआफ़ किए हैं, हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम भी एक दूसरे के गुनाह मुआफ़ करें। सो खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावंद बहुत बड़ी हस्ती है। हमारी नाकिस अक्लें जो हैं वो खुदावंद की जो हस्ती है उसको समझ नहीं सकती, हमारी अक्लों से वो बाहर है। लेकिन हम जो कलाम के ज़रिए समझते हैं कि खुदा बाप बहुत ही हलीम हैं, प्यार करने वाले हैं। उसने पहला कदम उठाया और उसने हमें मुआफ़ किया, उसने हमारे साथ सुलह की और उसने हमारे साथ मेल मिलाप कर दिया और अब हमारी बारी है। तो आज का पैगाम यही है कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि जिस तरह खुदा हम पर मेहरबान हुआ और उसने कुर्बानी दी, इसी तरह हमें भी एक दूसरे पर मेहरबान रहना है, नरम दिल रहना है, मुआफ़ करना है। यही हकीकी क्रिसमस है। हकीकी क्रिसमस दूसरों को मुआफ़ करने में, मेल मिलाप में है और यही क्रिसमस का पैगाम है। यही पैगाम लेकर फरिश्ते आए थे, यही पैगाम मजूसियों को मिला था, चरवाहों को मिला था और यही पैगाम आज हमारे लिए है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो हम अपनी जो जितने यहाँ हमें देखने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ दूसरी अक़वाम रहती हैं, हमें मेल मिलाप और प्यार और मोहब्बत के साथ, नरम दिल के साथ ज़िंदगी बसर करनी है क्योंकि हम खुदावंद यीशु मसीह के चुने हुए, छुड़ाए हुए, आज़ाद किए हुए, निजात याफ्ता लोग हैं। मसीह हमारी ज़िंदगी में नज़र आने की ज़रूरत है। खुदावंद हमें ऐसा ही बनाए, ऐसा ही हम पर फजल करे ताकि हम मसीह यीशु को अपनी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करते रहें, उसके जलाल को ज़ाहिर करते रहें ताकि सारा इज़्ज़त और जलाल मसीह यीशु को मिले। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बहुत बरकत दे और हमें ऐसा ही करने का फजल बख्शे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।